Hello, dear students. How are you all? I hope you all are fit and fine and wearing a mask when you go outside. Myself, Vyas Bhumika. Today, I will teach you Standard 6 English Grammar. Assignment 18, the present perfect tense. Before going to start the present perfect tense, first I am explaining you about the tenses. There are total 3 tenses: present, past and future. Present means today, past means yesterday and future means tomorrow. In this also there are 4 types: simple, perfect, continuous and perfect continuous. Means if we are taking the present tense, so in present tense there are 4 sub parts: simple present tense, present perfect tense, present continuous tense and present perfect continuous tense. So from this, today I am explaining you the present perfect tense. So for that, open your grammar textbook page number 30, watching the sentences and the explanation part. So let's see the explanation part. In your textbook, first they gave, read the following sentences. Number 1, I completed the work yesterday. Number 2, I have completed the work. So here both the sentences are different. Okay. So after that, they give us the explanation of first sentence. So let's see. First, in sentence first, an action took place in the past and so the simple past tense is used. Means in first sentence, the action is in past. So, the simple present tense is used in this sentence. The underlined verb completed is in the simple past tense. In this sentence, completed is a verb and it is in a simple past tense. Let's see about second sentence. Second sentence shows that an event stands completed in the present. Means they show us the event stand completed in the present. Means वो present में है लेकिन past में complete हो चुकी है. The underlined verb have completed is said to be in the present perfect tense. Means जो underlined verb है have completed, वो हमें कहता है कि वो present perfect tense में है. तो आपको उसके लिए नीचे फॉर्मूला दिया हुआ है. तो चलो देखते हैं कि उसका फॉर्मूला क्या है. To form this tense, we use the present tense form of the verb have plus past participle form of the verb. How do we form the past participle? Means to form this tense, means ये tense बनाने के लिए हमें present tense form of the verb have plus past participle form of the verb. Means past participle फॉर्म हमें वर्ब का यूज करना पड़ेगा. शॉर्टली द फॉर्मूला इज हैव प्लस V3. V3 मीन्स थर्ड वर्ब फॉर्म, मीन्स पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब. तो पास्ट पार्टिसिपल है वो थर्ड वर्ब फॉर्म कहलाता है. तो हम उसको कैसे बनाएंगे, उसके लिए नीचे टेबल दिया हुआ है. सो लेट्स लुक एट द टेबल. फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म. फर्स्ट है ओनली वर्ब, सेकेंड है पास्ट टेंस और थर्ड है पास्ट पार्टिसिपल. तो
तो हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में थर्ड फॉर्म यूज करना है वर्ब का। तो आप देख सकते हो कि एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे 4 वर्ब्स दिए हुए हैं। तो पहला वर्ब है वो है वॉक। वॉक का पास्ट टेंस होगा वॉक और उसका पास्ट पार्टिसिपल मतलब थर्ड वर्ब फॉर्म होगा वॉक्ड। नेक्स्ट है बिगिन। तो बिगिन का पास्ट टेंस होगा बिगैन और पास्ट पार्टिसिपल होगा बिगन। नेक्स्ट नंबर 3 है ब्रेक। तो ब्रेक का पास्ट टेंस होगा ब्रॉक और पास्ट पार्टिसिपल होगा ब्रोकन। फिर लास्ट नंबर 4 है गो। तो गो का पास्ट टेंस होगा वेंट और उसका पास्ट पार्टिसिपल हो जाएगा गॉन। चलो उसके नीचे हमें कुछ और इंफॉर्मेशन दी हुई है, चलो देखते हैं कि वो क्या है। The third column contains past participle forms of the verbs given in the first column। मतलब जो थर्ड कॉलम है उसका कंटेन पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब हमें मिलता है फर्स्ट कॉलम में से, जो हमने ऊपर टेबल में देखा था। When the verbs form their past tense in the regular way, that is with the addition of d or ed, the same form is used for the past participle also। Means जब हम कोई भी वर्ब फॉर्म को पास्ट टेंस में रेगुलर वे में यूज करते हैं तो उसके साथ हम डी और ईडी का यूज करते हैं और यही फॉर्म हम पास्ट पार्टिसिपल में भी यूज करते हैं। मतलब कि जो पास्ट टेंस में वर्ब फॉर्म होता है वो ही हम पास्ट पार्टिसिपल में भी रेगुलर वे में यूज करते हैं। लेट्स सी द एग्जाम्पल्स। फर्स्ट वर्ब है वर्क। तो उसका पास्ट टेंस हो जाएगा वर्क्ड और उसका पास्ट पार्टिसिपल होगा वर्क्ड। मीन्स सेम हो गया पास्ट टेंस और पास्ट पार्टिसिपल। सेकंड है जंप। तो जंप का पास्ट टेंस होगा जंप्ड और उसका पास्ट पार्टिसिपल हो जाएगा जंप्ड। फिर है बाथ। बाथ का होगा बाथड और पास्ट पार्टिसिपल बाथड। तो आप लास्ट एग्जाम्पल में देख सकते हो कि बाथ के स्पेलिंग में पीछे ई है तो हमने सिर्फ उसमें डी लगाया हुआ है, तो वो हो जाएगा पास्ट टेंस और पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब। The present perfect tense is used to show number 1 that an action has just been over। तो एक्शन अभी थोड़ी देर पहले ही ओवर हुई है वो दिखाता है। नंबर 2 that it is over at the time of speaking। जब हम बोलते हैं उसी टाइम वो एक्शन खत्म हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल आई हैव फिनिश्ड द वर्क अ शॉर्ट वाइल अगो। मतलब मैंने थोड़ी देर पहले ही अपना वर्क फिनिश कर लिया था। नंबर 2 ही हैज जस्ट अराइव्ड मीन्स अ फ्यू मिनट अगो। मीन्स वो थोड़ी देर पहले ही आया है। तो यहाँ पे भी आपको डिफरेंस नजर आ रहा होगा। आई के साथ हैव का यूज किया है और ही के साथ हैज का यूज किया है। मतलब आपको ये याद रखना है कि आई वी यू एंड दे के साथ हमें हैव का यूज करना है और ही शी इट के साथ हैज का यूज करना है। ओके, लेट्स सी पेज नंबर 31। नोट दैट व्हेन वी नो द टाइम for an action in the past, we use the simple past tense and never the present perfect tense। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट नोट है कि जब हमें पता चलता है कि ये जो एक्शन है वो पास्ट में हो गई है तो उसके लिए हम सिंपल पास्ट टेंस का यूज करते हैं, ना कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स, नंबर 1 I met him yesterday, not I have met him yesterday। ऐसे हम नहीं लिखते हैं। नंबर 2 है he ate his food at 1 PM। उसने अपना खाना 1 बजे खा लिया था, तो उसके लिए नॉट में दिया हुआ he has eaten his food at 1 PM। ऐसा हम नहीं बोल सकते हैं या तो नहीं लिख सकते हैं, है ना।
फिर से एक बार आप ध्यान से सुन लेना। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का फॉर्मूला है हैज और हैव प्लस V3. V3 मीन्स पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब. तो हैज का आप यूज करोगे ही, शी, इट के साथ, एंड हैव का यूज करोगे आई, वी, यू एंड दे के साथ. ओके, नाउ टेक अ पेन and write the answer of the given exercise of the blanks. So let's see the exercise. Exercise, fill in the blanks with the present perfect tense form of the verb in the bracket. Means हमें present perfect tense के verb form का use करके ये ब्लैंक में आंसर लिखने हैं. द फर्स्ट वन इज डन फॉर यू. फर्स्ट वन हमारे लिए किया हुआ है. नंबर 1 है आई हैव फिनिश्ड माई वर्क सो आई कैन रीड द बुक. ब्रैकेट में दिया हुआ है फिनिश. देखते हैं कि उन्होंने क्या किया है. आई को देखा है. आई मतलब फर्स्ट पर्सन सिंगुलर. तो मैंने फॉर्मूला में आपको बताया था कि आई के साथ हम हैव का यूज करेंगे और जो वर्ब फॉर्म दिया हुआ है उसके पीछे ईडी लगाएंगे. तो यहाँ पे उन्होंने भी ऐसा किया हुआ है. आई हैव फिनिश्ड माई वर्क सो आई कैन रीड द बुक. मैंने अपना वर्क फिनिश कर लिया है इसीलिए मैं अभी बुक रीड कर सकता हूँ. लेट्स सी सेकेंड ब्लैंक. ही ब्लैंक जस्ट ब्लैंक फ्रॉम पुणे. We have to use the verb form written. He has just written from Pune. Means वो अभी ही पुणे से रिटर्न हुआ है. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने has का यूज किया हुआ है. क्यों? क्योंकि आगे ही है और फॉर्मूला में मैंने आपको बताया था कि ही के साथ हम has का यूज करेंगे और जो वर्ब फॉर्म दिया हुआ है उसका थर्ड वर्ब फॉर्म लिखेंगे, मतलब पास्ट पार्टिसिपल लिखेंगे. तो रिटर्न का पास्ट पार्टिसिपल होगा रिटर्न. ओके, लेट्स सी नंबर 3. यू लुक सो टायर्ड आई डोंट थिंक यू डैश वेरी वेल. इन द ब्रैकेट स्लीप वर्ब फॉर्म इज गिवन. मीन्स आप बहुत ज़्यादा थके हुए लग रहे हो. मुझे नहीं लगता है कि आपने अच्छी तरह से आराम किया है. तो यहाँ पे यू दिया हुआ है. मैंने फॉर्मूला में आपको बताया है कि यू के साथ हम हैव का यूज़ करते हैं. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने ब्लैंक में पहले लिखा है हैव. फिर हमें स्लीप जो वर्ब फॉर्म दिया हुआ है उसका पास्ट पार्टिसिपल लिखना है. तो स्लीप का पास्ट पार्टिसिपल होगा स्लेप्ट. तो थर्ड ब्लैंक में आंसर आएगा हैव स्लेप्ट. लेट्स सी नंबर 4. सी डैश आउट टू बाय सम वेजिटेबल्स. इन ब्रैकेट द वर्ब गो इज गिवन. सो हियर you can see SHE, C is given. So in formula I told you with C we have to use has and we have to write third verb form of go means past participle form of the verb. So past participle form of the go is gone. So the answer is has gone. Let's see number 5. I dash to Kashmir once before but I want to be there one again. In bracket be verb is given. So here with I we have to use have. Why? Because in formula I told you with I we have to use have and the
third verb form of be. So third verb form of be is been. Means I have been Kashmir to once before but I want to be there one again. मैं कश्मीर बार जा चुका हूँ लेकिन तो भी मुझे और एक बार जाना है. Let's see number 6. We trust in God though we dash not dash him. In bracket the option is C. हम गॉड में ट्रस्ट करते हैं लेकिन हमने उनको देखा नहीं है. So here we is given. So with we have to use have. In formula I told it. Yes, and we have to write the third verb form of see. Means the past participle form of see. Means the past participle form of see is seen. So number 6 blank is like this. We trust in God, though we have not seen him. Let's see number 7. See dash well in the examination. Let us wait for the result. Option is do. Means we have to write the past participle of do. So उसने एग्जाम में अच्छा किया है. Let us wait for the result. चलो रिजल्ट का वेट करते हैं कि उसने क्या किया है एग्जाम में. तो यहाँ पे सी लिखा हुआ है तो सी के साथ हम हैज़ का यूज करेंगे. पहले मैंने आपको फॉर्मूला में बताया हुआ है. और डू का लिखेंगे थर्ड वर्ब फॉर्म मीन्स पास्ट पार्टिसिपल. तो डू का पास्ट पार्टिसिपल होगा डन. डू डीड डन. तो यहाँ पे 7 ब्लैंक में आंसर आएगा हैज डन. तो पूरी 7 ब्लैंक इस तरह से हो जाएगी. सी हैज डन वेल इन द एग्जाम और एग्जामिनेशन. लेट अस वेट फॉर द रिजल्ट. उसने एग्जाम में अच्छा ही किया है लेकिन तो भी चलो रिजल्ट का वेट करते हैं. लेट्स सी नंबर 8. We dash plenty of fruits for the picnic. You need not worry. Option is buy. Here we have to write the past participle form of buy. Means हमने थोड़े से फ्रूट्स पिकनिक के लिए खरीदे हैं, आप चिंता मत करो. Here we is given. So for that we have to use have. Why? Because in formula I told you with we have to use have. And after this we have to write the third verb form of buy. Past tense of buy is bought. And the past participle of buy is bought. So here we have to use the past participle of buy. So in answer I wrote bought. So the 8 blank is like this. We have bought plenty of fruits for the picnic. You need not worry. हमने पिकनिक के लिए थोड़े से फ्रूट्स खरीदे हैं, आप चिंता मत करो. Let's see number 9. C is very weak. She dash not dash anything since morning. Option is eat. Here we have to write the past participle form of eat with has or have. वो बहुत वीक है क्योंकि उसने सुबह से कुछ खाया नहीं है. So here C is given, SHEC. So with C we have to write has. In formula I told you. And after this we have to write the third verb form of eat. Third verb form of
eat is eaten. So here in the 9th blank we have to write eaten, that I wrote. Number 9 blank is like this. She is very weak. She has not eaten anything since morning. वो बहुत ही वीक है क्योंकि उसने सुबह से कुछ भी खाया नहीं है. Let's see 10th and last blank of this exercise. The school dash the result just now. Go and bring your progress book. Option is declare. Means स्कूल ने रिजल्ट अभी ही डिक्लेयर किया है, जाओ और अपनी प्रोग्रेस बुक लेके आओ. इस ब्लैंक वी हैव टू राइट हैज और हैव विथ पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब. सो द स्कूल, तो स्कूल है वो इट में आता है, तो इट के साथ हम हैज का यूज करेंगे और जो वर्ब फॉर्म दिया हुआ है उसके पीछे ईडी लगाएंगे. तो डिक्लेयर का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब है डिक्लेयर्ड. तो 10th नंबर की ब्लैंक ऐसे होगी. द स्कूल हैज डिक्लेयर्ड द रिजल्ट जस्ट नाउ. गो एंड ब्रिंग योर प्रोग्रेस बुक. Number 3, a list of past tense and past participle forms of the more commonly used irregular verbs is given below for reference. Means नीचे रेफरेंस के लिए वर्ब का पास्ट टेंस और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म जो कॉमनली हम इरेगुलर वर्ब के लिए यूज करते हैं वो दिया हुआ है. इसमें टोटल 24 हैं. मैं आपको 2-3 बताऊंगी, बाकी आप अपनी टेक्स्ट बुक में से देख के रीड कर लेना और उसको याद भी रखना है, वरना आप सेंटेंस फ्रेम नहीं कर पाओगे जब आप कम्युनिकेशन इंग्लिश में करोगे तब. तो फर्स्ट है इट, उसका पास्ट टेंस होगा एट और उसका पास्ट पार्टिसिपल होगा इटन. नंबर 2 है सी, उसका पास्ट टेंस है शो और पास्ट पार्टिसिपल है सीन. आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस असाइनमेंट वेरी वेल. थैंक यू.